Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Fundamental Rights, and under this chapter, in the previous class, we were discussing directive principles of state policy. And under this, we have discussed what do we mean by directive principles of state policy. Directive principles are those principles which are a kind of direction, or we can say they are guidelines for the government in order to formulate the policies. Whenever the government is going to formulate any policy, it must keep in mind these guidelines or directions which are given by the constitution. And the most important thing about these guidelines are that they are non-justiciable. There is no legal force behind these guidelines. We cannot approach the court if the government is not following the directions given in these principles. So our constitution makers were of the opinion that there is only need of moral authority behind these principles, because if we want that democracy should not be undermined in order to bring equality or well-being in the society, it was very much required that these policies should not be made compulsory, should not be made legally binding on the government. अगर legally binding हो जाएगा, then there will be lack of options in front of the people, in front of the government, and that will curtail the spirit of democracy. And that is why this was done by our constitution makers. And then we have also discussed about that there are three types. We can say all the directive principles can be divided into three categories. The first is those directive principles which are related to the goals of the society. What type of society we want to create, welfare of the people, then some social, economic and political justice, so that there should not be any kind of exploitation, or there should not be any kind of discrimination, then raising the standard of living, then equitable distribution of resources. So these are the goals of the society which are given in the directive principles of state policy, and it is expected from the government that it will formulate such policies which will promote welfare of the people. It will formulate such policies which will bring equitable distribution of resources. It will formulate such policies which will through which the standard of living of the people will rise. Then it will formulate such policies which will bring social, economic and political justice. So these are the goals. Other than this, one more important directive principles of state policy is there, that is promotion of international peace. In order to promote international peace and security, the government of our country must formulate such policies. The government should not go for such policies which encourages animosity or any kind of war-like situation in the world. We must go for such policies which promote international peace and security. So these are the
these are the directive principles which are related to the goals of the society. We have discussed up to this, and then the another category of this DPSP is the individual rights of the individual. तो जहाँ पर हम राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल देखेंगे, तो ये राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जिन राइट्स का इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किया गया है, दीज राइट्स आर नॉन जस्टिसेबल. Non-justiciable means there is no legal force behind these rights. We cannot approach the court if the government is not fulfilling these rights. है ना? This is the difference between fundamental rights and directive principles of state policy. जो कुछ भी इसमें दिया गया, whatever is there in these DPSP, they are non-justiciable. We cannot seek legal remedy if the government is not following these principles in formulating its policies. Okay? तो इसमें जिन राइट्स का हमारा बात की गई है इसके अंदर, वो है लाइक एडिक्वेट लिविंगहुड, है ना, लाइवलीहुड, एडिक्वेट लाइवलीहुड होनी चाहिए. अगर हम अपने जो वट एवर वी हैव studied under judiciary, we have discussed about it, and again under this fundamental right also we have discussed about it, that our constitution gave us right to life, but that right to life is very narrow. The scope of this right of life which is given by our constitution is very narrow, but it has been widened, it has been broadened by the interpretation of the constitution by the judiciary. ठीक है, जुडिशरी ने जो इंटरप्रिटेशन किया है, उस इंटरप्रिटेशन से इस राइट टू लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्रॉड किया गया है, वाइड किया गया है, और अब हमारे राइट टू लाइफ के अंदर लाइवलीहुड, जो राइट टू लाइवलीहुड भी आता है. दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ द जुडिशरी, according to which we can say that right to livelihood is now our fundamental right, but in original constitution it is given in these directive principles of state policy. Okay, now the second is we can say जो कि non justiciable right हमारे दिए गए हैं, equal pay for equal work for men and women. There should not be any kind of discrimination on the basis of gender in the matters of remuneration. जब भी remuneration दी जाएगी किसी को भी, तो वो उसके जेंडर के बेसिस पे उस पर कोई फर्क नहीं किया जाना चाहिए. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया है, और इसको इसी डीपीएसपी को, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे एक्ट्स बनाए हैं, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट्स बने हैं, जो कि कहता है कि मेल और फीमेल को इक्वल रेम्यूनरेशन, इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए फॉर इक्वल वर्क. अगर वो बराबर काम कर रहे हैं तो उसके लिए उनको बराबर पैसे मिलने चाहिए. इस बेसिस पे आप नहीं कह सकते हैं कि मेल जो होती हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, फीमेल की कैपेसिटी कम होती है. किसी भी सेंस में इस बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो ये भी हमारे एक्ट बन चुके हैं इसके रिगार्डिंग. फिर एक और इसमें राइट दिया गया है, वो है राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. किसी भी तरह का अगर हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके राइट को भी एंश्योर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और इसी पार्ट में हमारे राइट टू वर्क का भी मेंशन मिलता है. राइट टू वर्क जो है वो अगर देखा जाए तो राइट टू वर्क जो होता है वो मोस्ट ऑफ दी, बहुत कम ही कंट्रीज जो होती है वो राइट टू वर्क देती है. जैसे कि अगर हम कम्युनिस्ट कंट्रीज को देखें तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट इज राइट टू वर्क. लेकिन हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वर्क नहीं दिया गया एज अ फंडामेंटल राइट. इट इज ओनली गिवन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. और इसी को फॉलो करते हुए अभी हम लोग जानते हैं मनरेगा, जो कि गवर्नमेंट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, जो कि जिसको हम कह सकते हैं पार्शियली जो राइट टू वर्क की बात करता है.
क्योंकि उसमें कहा गया है ना कि जैसे साल में 365 दिन होते हैं तो कम से कम 100 दिन का काम लोगों को जरूर मिले। तो एटलीस्ट 100 डेज वो इंगेज रहें ताकि 100 डेज की उनको जो वेजेस है वो मिल सके, ताकि उनकी लाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सके, जिसको हम मनरेगा कहते हैं। तो ये इस तरह से हम अगर देख रहे हैं तो क्या है, जो भी चीज़ें दिया गया है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसको गवर्नमेंट इज फॉलोइंग दैट। इट्स नॉट ओनली कि इट इज़ ओनली गिवन इन द बुक एंड इट इज़ ओनली ऑर्नामेंटल, नो, इट इज़ एक्चुअली इन प्रैक्टिस, है ना। इसी तरह से एक और हमारे राइट है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि जो बिलो 6 ईयर्स एज के बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, उनका चाइल्डहुड केयर जो होना चाहिए वो मतलब वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, वॉट एवर चाइल्डहुड केयर इज रिक्वायर्ड, दैट मस्ट बी गिवन टू एवरी चिल्ड्रन। और एजुकेशन मिलना चाहिए। तो एजुकेशन हमने ये वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑल्सो, दैट नाउ वी हैव दिस राइट टू एजुकेशन। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो पास हुआ और ये हमारे फंडामेंटल राइट का एक पार्ट बन गया। तो इस तरह से और इसमें राइट टू एजुकेशन में क्या, ये 6 साल से कम एज के बच्चों की बात नहीं करता है, बट इट टॉक्स अबाउट द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, उनको कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं ये सारे नॉन जस्टिसिएबल राइट्स हैं इंडिविजुअल के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू लोगों को देता है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इनको फॉलो किया है, ठीक है। अब इसके बाद एक और कैटेगरी जो है वो इनकी आती है, जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है उनकी एक और कैटेगरी है, और वो है कि द पॉलिसीज द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। ओके, ये सेकंड कैटेगरी है। फर्स्ट वाला जो हमने पहले डिस्कस किया था गोल ऑफ सोसाइटी है ना, और जो थर्ड है वो है पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है उससे भी रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिनके बारे में हम लोग अभी कुछ एग्जांपल्स जब हम देखते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाती है। जैसे एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे सिविल मैटर्स जो होते हैं, जो फैमिली से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, लाइक मैरिज है, डाइवोर्स है, अडॉप्शन है, विल है, इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनके बारे में एक ये कहा गया है कि स्टेट को ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा सके। मतलब हमारी जो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो मोस्टली हमारे धर्म से गाइडेड होती है। जैसे अगर देखा जाए तो जो हिंदू हैं उनके लिए हिंदू कोड बिल है ना, हिंदू कोड जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारे सारे जो भी पर्सनल मैटर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होते हैं। रिगार्डिंग मैरिज है, डाइवोर्स है, अडॉप्शन है, ये सारे उससे रिलेटेड होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली होते हैं, हिंदू कोड बिल के अकॉर्डिंगली। इसी तरह से जो मुस्लिम्स हैं उनको भी उनका जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो उनके चीज़ें हैं वो उनके धर्म के अनुसार वो होता है ना। और ये चीज़ें कुछ ऐसी मतलब खास करके इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर सो मच डाइवर्सिटी इज देयर, वी फाइंड दैट इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो की गई है हमारे डीपीएसपी में, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को अचीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे बिल्कुल पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती है उसमें हम वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, है ना। ये हर कोई मतलब कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो। खास करके अगर ये जो पर्सनल लॉज हैं, इन पर्सनल लॉज के कवरिंग में जैसा कि पहले भी आई टोल्ड यू ये होता है, पर्सनल लॉज के कवरिंग में क्या होता है कि एक्चुअली एक पर्टिकुलर सेक्शन को
डोमिनेट किया जाता है। तो जब भी गवर्नमेंट इस तरह के मैटर्स में इंटरफेयर करना चाहती है तो उसका काफ़ी प्रोटेस्ट होता है, उसको नहीं पसंद किया जाता है। खास करके जो हार्डलाइनर्स होते हैं, दे ऑलवेज प्रोटेस्ट सच मूव्स। तो ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। इसका मतलब यही है कि पर्सनल जो लॉज हैं हमारे, वो हमारे सिविल मैटर्स को नहीं डिटरमाइन करेंगे, बट पूरे कंट्री में, इंडिया इज़ अ वन कंट्री, इंडियंस आर वन पीपल, सो उनके जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो मैटर्स है उन सब के लिए जो लॉ है वो भी एक होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पर्सनल लॉज अलग अलग हैं, धर्म के अकॉर्डिंगली है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं उन सबको सिविल मैटर्स में एक सिंगल लॉ के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये जो बीजेपी है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। उसके मैनिफेस्टो में ये हमेशा रहता है। जैसे आर्टिकल 370 को हटाने की वो बात करते थे और हटा दिया गया है ना, उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना भी जो बीजेपी है उसके एजेंडा में, उसके मैनिफेस्टो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो पॉलिसी में हमने जैसे देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना, देन प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लीकर, अल्कोहलिक लीकर के कंजम्पशन पे भी रोक लगाने की बात करती है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली इसको प्रोहिबिट कर दिया है कि अल्कोहल का कंजम्पशन लोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे अल्कोहल जो है उसकी खरीद बिक्री पूरी तरह से इलीगल कर दी गई है। तो ये क्यों किया गया? इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करते हुए, ठीक है। इसी तरह से एक और पॉलिसी है, वो है कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री क्या हुआ? जैसे जो छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, जो घरों में जो इंडस्ट्रीज चलते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग का मान सकते हैं जो इंडस्ट्री है, तो उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि जो हमारी सोसाइटी के जो पुअर सेक्शन है उनकी हेल्प हो सके। बिकॉज कॉटेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो ज़्यादातर पुअर सेक्शन ही जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रिवेंशन ऑफ सॉर्टर ऑफ यूजफुल कैटल, जो कैटल यूजफुल है उनकी स्लॉटर नहीं होनी चाहिए। और इसी डीपीएसपी के को मानते हुए काउ स्लॉटर को जो बैन किया जाता है अभी, तो खास करके काउ स्लॉटर का जो मैटर है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं, बहुत हॉट इशू बना हुआ है। तो काउ स्लॉटर को बैन किया जो जाता है वो इसी डीपीएसपी के अंदर किया जाता है कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमको कहता है कि जो यूजफुल कैटल है, जिनसे जैसे काउ से हमें मिल्क मिलता है, तो इनका स्लॉटर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि चीज़ें बहुत ही पॉलिटिकल हो जाती हैं और इसको हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें सब चीज़ें मतलब बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के होती है, दीज आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो अभी के समय में काउ स्लॉटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है, बट एट प्रेजेंट वी डोंट नीड टू गो इन दोज डिटेल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वी कैन से पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर क्या आएगा? प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत। ये हमारे डीपीएसपी में इसको जगह दी गई थी। जैसा कि हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट को पढ़ा, और जब लोकल गवर्नमेंट हमने पढ़ा तो हमें यही समझ में आया कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका जो प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं दिया गया था। इट वाज गिवन इन दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट। तो ये इसके पीछे क्या रीजन है वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। और फिर हमने क्या देखा, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाया गया, एंड थ्रू दीज अमेंडमेंट्स व्हाट हैपेंड दैट दिस लोकल गवर्नमेंट वाज मेड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अमेंडमेंट ला करके लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। तो लेकिन ओरिजिनली लोकल गवर्नमेंट की जो बात थी वो डीपीएसपी में ही थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बनाती है गवर्नमेंट, ऐसे पॉलिसीज फॉलो करती है जिससे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसको सही बनाया जा सके, उसको रियलिस्टिक बनाया जा सके। तो ये हमने इसके तीनों कैटेगरी को देख लिया कि तीन तरह के जो कंटेंट है डीपीएसपी में वो कौन कौन से हैं। गोल ऑफ सोसाइटी है, देन राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल है, देन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट है। एंड नाउ वी विल सी सम अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। So
now we will see the relationship between the fundamental rights and डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट के बीच में क्या रिलेशनशिप है. So directive principles of state policy. And fundamental rights. तो अब हम दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ द चैप्टर. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. तो जो रिलेशन हमें नज़र आता है वो अगर देखा जाए तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बोथ ऑफ देम कंप्लीट ईच अदर. एक चीज़ जो इसमें कमी है वो इधर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है. जो चीज़ें जैसे फंडामेंटल राइट्स में जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा कर दिया गया है इस डीपीएसपी से. तो एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करता है, एक दूसरे को पूरा करते हैं. लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग देखेंगे. इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम देखते हैं, इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि अगर डिफरेंसेस देखें कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो जो फर्स्ट डिफरेंस हमें नज़र आता है वो ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर निगेटिव इन नेचर. व्हाट डू यू मीन बाय निगेटिव? निगेटिव इसलिए इसको हम कहेंगे क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर लाइक रेस्ट्रेंट्स. गवर्नमेंट को कुछ करने से वो रोकती है, आपको ये नहीं करना है. तो ये क्या है? दिस इज निगेटिव. ये फंडामेंटल राइट्स का जो नेचर है वो निगेटिव नेचर है. इट रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स. ठीक है, आपको लोगों के राइट में इंटरफेयर नहीं करना है. सो गवर्नमेंट इज बीइंग रेस्ट्रेन्ड बाय the fundamental rights, and that is why we say that these fundamental rights are negative in nature. ठीक है, तो और on the other hand what we find कि directive principles जो होते हैं वो they are positive in nature because they are not putting any kind of restrictions on the state or the government, but actually they are giving guideline to the government in order to फॉर्मुलेट द पॉलिसीज़. तो वो गवर्नमेंट को कहती हैं कि आप ऐसे पॉलिसीज़ बनाइए जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो, ऐसे पॉलिसीज़ बनाइए जिससे लोगों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसे पॉलिसीज़ बनाइए जिससे कि इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क हो. तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो क्या है, ये इसको एक पॉजिटिव कैरेक्टर देता है. ये सरकार को कहती है आपको क्या करना है, what you should do. And the fundamental rights, they are negative in nature because they are asking the government what it is not supposed to do. ठीक है, क्या नहीं करना है बताती है फंडामेंटल राइट, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताती है कि क्या करना है. दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट important difference between these two. And now the second difference which we can see between these two is that the fundamental rights are the rights of individual. They protect the rights of individuals, है ना. फंडामेंटल राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल से कनेक्टेड है. And if we see these directive principles of state policy, what we find that they ensure the well-being of entire society. पूरी सोसाइटी के well-being को वो एंश्योर करता है. इससे क्या मतलब हम समझते हैं? इससे हम ये मतलब समझते हैं कि DPSP is not concerned with the rights of a particular individual, but it is concerned with the well-being of the entire society. पूरी सोसाइटी के वेलबींग को ये देखती है. ठीक है, इसका जो एम है वो एक इंडिविजुअल नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी है. और जो तीसरा डिफरेंस हम देखेंगे इन दोनों के बीच में है वो किस चीज़ को लेकर के है? लीगल अथॉरिटी एंड
मॉरल अथॉरिटी को लेकर के। जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पीछे लीगल अथॉरिटी है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पीछे डायरेक्टिव लीगल अथॉरिटी नहीं है बल्कि मॉरल अथॉरिटी है। ठीक है, तो जिस तरह से हमें नज़र आता है तो ये समझ में आता है कि जो डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल राइट्स है एक्चुअली दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को वो पूरा कर रहे हैं। बट in actual practice the situation is not such. In actual practice what we find that there is controversy between these two, there is conflict between these two। ठीक है, और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। कहाँ से बढ़ा, कहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ये जो कंट्रोवर्सी है इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन है हमारी वन ऑफ द फंडामेंटल राइट जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। This right to property is it was one of the fundamental rights of the people of the country। ठीक है, ठीक है, एक तरफ अपने फंडामेंटल राइट्स में हमें राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, दूसरी तरफ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो गोल सेट किया गया सोसाइटी का, दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, equitable distribution of resources, जो भी रिसोर्सेज है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। एंड एज आई टोल्ड यू कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी कंट्री में बहुत ही हाईली अनइक्वल है। ठीक है, तो ये दो चीजें हम देख रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। दीज टू कॉन्सेप्ट्स okay these two concepts are contradictory to each other, क्योंकि एक बार आप हमें राइट टू प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ऑब्वियसली राइट टू प्रॉपर्टी अगर हमारे पास होगा तो हमें अपने हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से कितना भी हम प्रॉपर्टी अर्न कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट if the government wants that this directive principle of state policy should be followed, तो क्या करना होगा कि रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो अगर गवर्नमेंट विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द resources of the country in an equal manner, then it will totally undermine the right to property। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को ये अंडरमाइन करेगा। क्यों अंडरमाइन करेगा? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमको ये राइट देता है कि हम अपने हिसाब से संपत्ति, प्रॉपर्टी जो है वो अर्न कर सकते हैं। और ये जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कह रहा है कि अगर इस तरह की कुछ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में रिसोर्सेज का, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने जमींदारी एबॉलिश करने का लॉ लाया, जमींदारी एबॉलिशमेंट एक्ट। ठीक है, ये जमींदारी एबॉलिशन एक्ट जो आया ये 1951 में ही आया था, और इस समय से ही जो कंट्रोवर्सीज थे वो स्टार्ट हो गए। क्यों स्टार्ट हुए? क्योंकि अगर आप जमींदारी को एबॉलिश कर रहे हैं तो यू आर गोइंग अगेंस्ट दिस राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस दिस राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो एक्ट है जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, दिस एक्ट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, और इस कारण से इसको अपोज किया गया। ठीक है, और इसमें ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जो थी उसका ये ओपिनियन था कि जो पूरी सोसाइटी है उसका वेलबींग
इज द गोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए पूरी सोसाइटी के वेलबींग को ध्यान में रखते हुए हम ये जमींदारी एबोलिशन एक्ट हमने लाया है। और यहीं से हम देखते हैं कि ये स्टार्ट होती है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी स्टार्टिंग यहीं से होती है और ये काफ़ी आगे जाती है और आखिर में जाकर के जुडिशरी जो है उसके जजमेंट से ही सब कुछ होता है, जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्ट्रोवर्सी एंड somehow confusing also. So you must pay attention to this. We will continue it in the next class.